Hello everyone, my name is Bhavna and I'm a physics teacher. I have been teaching since 2007 in CBSE board school to class 11th and 12th student. So with my own experience as well as my students' experience who have been selected for IIT's institute, as well as some of students are in research institute right now after clearing NEST examination and JAM examinations. So with that kind of experience, I can share some tips to give the best performance in examination. So if you are going to appear in NEET or Z examination right now, then this video is for you. If you have any confusion or any fear regarding the D-Day, means examination day, then this video is for you. So there are 5 tips that I will provide you to appear in the examination day in the examination center very confidently, to give your 100%. What happens to all students, even after this hard effort, even after this hard work, they are not able to perform their 100%, especially on D-Day. So come to first tip for best performance, that time management. If you have 180 questions and 180 minutes for examination paper, that doesn't mean that 1 minute for one question. That because reason is that question is divided into 2 categories. One is concept based question and the second is numerical based question. फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन कैलकुलेशन. सो इफ़ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में कम टाइम लगना चाहिए. यू कैन सॉल्व कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स एंड द रिमेनिंग 30 सेकेंड टाइम, दैट मीन्स 1 मिनट का जो 30 सेकेंड बचा, यू कैन डिवोट दिस 30 सेकेंड टाइम टू न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन. तो आपने एग्जामिनेशन टाइम पे अपने 180 क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट हर एक क्वेश्चन को नहीं देना है. कुछ क्वेश्चन में कम टाइम लगेगा, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उसको आप डायरेक्टली ऑप्शन में से पिक आउट करके आंसर दोगे. एंड सेकेंड कि आप न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन में अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो. बट हाँ, इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप एक कन्वीनियंट मोड में आ जाओ कि न्यूमेरिकल आप स्लो सॉल्व कर रहे हो. अगर न्यूमेरिकल 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है तो आपका वो 30 सेकेंड बच गया लास्ट के रिव्यू के लिए. सो दिस इज़ माई टिप नंबर 1. माई टिप नंबर 2, दैट मेक सिंबल फॉर ईच कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस. आप एग्ज़ामिनेशन देने से एक दिन पहले इन्हीं स्ट्रेटजी पे प्लानिंग करते हो, तो आपने अपने आप से ही अपने आप को रेडी कर लेना है उन सिंबल्स के यूज टू होने के लिए, लाइक सर्किल, टिक एंड ट्राइंगल. सो इफ़ यू हैव अ टिक symbol, that means that question is attempted correctly and you have marked that question in OMR sheet. And if you have circled that question, that means you will attempt that question later on, because you don't have so much time to be in one question in examination day. So that is why you can categorize the symbol on the basis of category of questions. Okay, so this is the tip number 2. My tip number 3, that is negative marking solution. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जी में और नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है. फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है तो उसमें 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में जाते हैं. सो नेगेटिव मार्किंग अगर आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियसली मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे. सो टू रिमूव द इफ़ेक्ट ऑफ दिस नेगेटिव मार्किंग, आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, कई बार आपको ऐसा लगता है कि यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट यू आर नॉट वेरी श्योर. सो इफ़ यू आर नॉट वेरी श्योर फॉर द आंसर, सो वॉट यू हैव टू डू, you don't involve so much time, you don't apply so much time to that question. You will do that question within 30 seconds. Generally concept based question में ही ऐसा होता है जहाँ पर आपको confusion आती है. तो उस concept based question में आप 30 सेकेंड का ही टाइम लगाओ, but you can mark that question with some symbol like triangle. तो अगर आपने ट्रायंगल से मार्क कर दिया तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपके लिए रिव्यू के लिए है लास्ट के 15 मिनट्स में. एंड रिमेंबर दिस कि उसका आंसर आपने OMR शीट में मार्क नहीं करना है. क्यों? क्योंकि OMR शीट में आपके पास पेन से, बॉल पेन से आप मार्क करते हो. एक बार मार्क कर दिया तो आप इरेज नहीं कर पाओगे. सो दैट इज़ वाई मेक द मार्क फॉर नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस जिस पे आप श्योर नहीं हो, उसका आप एक बार रिव्यू कर लो कि लास्ट में अगर आपको कॉन्फिडेंस है
कि वो क्वेश्चन करेक्ट है लास्ट में, तो आप उसको मार्क करो OMR शीट में, अदरवाइज लीव दैट क्वेश्चन. My tip number 4, that is OMR sheet attempt. If you are going to attempt OMR sheet, first of all make a slot. 180 questions के slots बना लो, either 10 questions और 20 questions के slots. उन slots के questions को attempt करने के बाद एक बार आपको OMR sheet में आकर के आंसर्स लिखना है. जनरली बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में मार्क कर देते हैं पेंसिल से, और उसके बाद OMR शीट के लिए फिलअप करने के लिए आपके पास लास्ट में टाइम नहीं बचता है या कम बचता है, तो आप उस समय हरी में कई बार गलत ऑप्शन में भी मार्क कर देते हो. तो उससे बचने के लिए आप 10 to 20 क्वेश्चंस का एक स्लॉट बना लो, या तो 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चंस का, कि आफ्टर एवरी 20 क्वेश्चन यू विल मार्क द OMR शीट फॉर द आंसर्स ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस और दीज 10 क्वेश्चंस. अगर आप 20 में डिवाइड करते हो तो मीन्स आपको 9 टाइम्स OMR शीट फिलअप करनी पड़ेगी, 180 डिवाइडेड बाई 20. तो आप इस तरीके से OMR शीट को साइड बाय साइड फिलअप भी करते जाओगे एंड यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी क्विकली. लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, OMR शीट में उन क्वेश्चंस को मार्क नहीं करना जिसको आपने रिव्यू के लिए लास्ट 15 मिनट्स रिव्यू के लिए रखा हुआ है. उन क्वेश्चंस को आप OMR शीट पे कहीं भी मार्क नहीं करोगे, ठीक है. उसको आपने क्वेश्चन पेपर में ट्रायंगल फॉर्म में बना करके रखा हुआ है, तो आप उसको लास्ट में जब रिव्यू कर लोगे, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन ओनली यू विल मार्क दैट आंसर्स, दैट ऑप्शन इन OMR शीट. So my last and fifth tips for best performance in examination is the observation of your watch. जनरली बच्चे जो फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम पे एग्जामिनेशन देने जाते हैं, आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप अपना एक्सपीरियंस अपने यंगर्स को शेयर करोगे, बट अभी जब आप फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम एग्जामिनेशन देते हो तो प्रॉब्लम ये आती है कि आप हर 1 या 2 मिनट में अपनी वॉच ऑब्जर्व कर रहे होते हो. तो आपने 1 डे बिफोर जो प्लानिंग कर रहे हो उसमें क्या करना है कि आपने स्लॉट बना लेना है. उस 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स को आपने स्लॉट में डिवाइड करना है हाफ एन आवर के. एवरी हाफ एन आवर के बाद आप क्वेश्चंस, जब 180 क्वेश्चंस देख रहे हो तो एवरी 30 क्वेश्चंस को आप वहाँ पे टाइमिंग लिख दोगे दैट हाफ एन आवर. तो एवरी 30 क्वेश्चंस हाफ एन आवर की लिमिट में कंप्लीट होंगे, और इस तरीके से आपका 630 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज़ 180. सो 180 मिनट में आपने 6 टाइम्स अपनी वॉच को ऑब्ज़र्व करना है और क्वेश्चंस देखने हैं कि आपने 30 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए हैं या नहीं. So that is overall my tips, and that is your planning before 1 day before the examination. So these are my 5 tips to you to appear in examination, be confident in examination, and to give your 100% best performance in examination day, that is D-Day. Okay, if you like these tips then give comments, and if you have any other queries regarding preparation of different competitive examination, whether it is NEET, JEE, JAM, NEST, or any of the examination related to physics or related to science subjects, I am here with you. You can suggest me to make the video. I will definitely make the video for you. So thank you and good luck to you. You will do the best in your D-Day.